Good morning, students. Welcome to Show Bio classes. Today, our topics are plantae, animalia, virus, viroids, and lichens. Fine. This is just an introduction of these. First is eukaryotic nature. First point is eukaryotic nature of plantae kingdom. It means these are having well developed nucleus and these are also having membrane bound organelles in case of plants like chloroplast, mitochondria, fine, etc. And these are also having chlorophyll pigment. Due to this pigment, plant can synthesize their own food. That is, they can perform photosynthesis. Fine. Next is they are having alternate life cycle. They are having alternate life cycle like diploid sporophytic generation. Second is gametophytic generation. In case of sporophytic generation, there is prediction of haploid meiospores by meiosis. But in case of gametophytic generation, there is formation of diploid zygote by the fusion of male and female gamete. Fine. In case of sporophytic generation, there is formation of spores. Fine. But in case of gametophytic, there is formation of zygote. Next is they are having, in case of diploid sporophytic, they are having two sets of chromosomes. But in case of gametophytic generation, there is single set of chromosome. Fine. Next, plantae kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. फाइन. प्लांटे किंगडम में मैंने क्या बताया है, इनका यूकैरियोटिक नेचर होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये अपना खाना खुद बना सकते हैं. यूकैरियोटिक का मतलब समझते हो, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जो प्रोकैरियोटिक के केस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ऑल्टरनेट लाइफ साइकिल है, ठीक है. लाइफ साइकिल मतलब टू फेसेस में होगी इसकी. एक तो होगा स्पोरोफाइटिक, दूसरा होगा गैमेटोफाइटिक. तो स्पोरोफाइटिक के केस में क्या है, ये डिप्लॉयड होगा नेचर में, यानी कि इसके पास दो सेट होंगे क्रोमोसोम के. जैसे ह्यूमन सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, 46 का हाफ क्या हुआ, 23. तो 23 क्या बना, एक सेट बना. 23 क्या बना, एक सेट बना किसका, क्रोमोसोम का. और 46 क्या है, डबल है किसका, 23 का. तो वो क्या है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये ह्यूमन का है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको. अब गैमेटोफाइटिक के केस में क्या होगा, गैमेटोफाइटिक के केस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा. जैसे ह्यूमन में सिंगल क्या था, 23. ऐसे ही प्लांट में क्या होगा, जो भी होगा, सपोज करो 14 हुआ, तो 14 का हाफ क्या हुआ, 7, ठीक. नेक्स्ट है, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज इंक्लूड हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. First is algae, second is bryophytes, third is pteridophytes, and fourth is gymnosperm. The last one is angiosperms. Fine. We will discuss about these in chapter number 3rd. Next is Animalia kingdom. These are heterotrophic in nature. Heterotrophic means what? They can't synthesize their own food. They can't perform photosynthesis because these are not having chlorophyll pigment or chloroplast. Fine. They are eukaryotic in nature. It means, again I am saying, that they have well developed nucleus and membrane bound cell organelles.
fine, and they are multicellular in nature and they don't have cell wall. इनके पास सेल वॉल नहीं होता. किसके पास सेल वॉल होता है? प्लांट के पास होता है, फंजाई के पास होता है, मोनेरा के पास होता है, प्रोटिस्टा के पास. लेकिन एनिमल किंगडम के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता. कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. इससे पहले जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं आपको, किंगडम बताई, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें नहीं है. नेक्स्ट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक. नेक्स्ट, रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है? फूड है. कैसा फूड है? स्टोर्ड फूड है. अब मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कई वीडियोस में. अब मैं बात कर रही हूँ, अब मैं खाना तो नहीं खा रही ना. मेरे अंदर जो ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है. लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, तो क्या है? मेरी एनर्जी लग रही है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है. तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में. ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है. और वो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, साथ के साथ वाटर वेपर्स भी. ठीक. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this case, there is copulation between male and female gametes, and which is further followed by embryological development. देखो, sexual reproduction में क्या होगा? There is fusion of male and female gamete. This one represent female and this one represent male. Fine. And further there is formation of zygote. After zygote, it get converted into embryo. Then there is एन इन्फेंट. फाइन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, फिर उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा. फिर वो पूरा प्रोसेस क्लियर होने के बाद इन्फेंट का बर्थ होगा. ठीक. नेक्स्ट, वायरस, विरोइड्स एंड लाइकन्स. The five kingdom classification system was given by R.H. Whitaker, but he did not include it that there is virus, viroids or lichens. There was virus, viroids and lichens. उसने कभी भी नहीं बताया था. ठीक. ये तो बाद में इन्वेंशन हुई, सॉरी बाद में डिस्कवरी हुई है इस चीज़ की, तो पता चला. वायरस. वायरस क्या होते हैं? दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे डोंट हैव सेल. क्या बोला मैंने? वायरस डजंट हैव सेल. इट मीन्स दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. याद रखना इस बात को. एंड दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन, दे आर हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग. अब ये कोरोना वायरस है, ये किस फॉर्म में है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. जैसे ही ये लिविंग सेल में, जैसे ये बॉडी के अंदर आता तो एक्टिव हो जाता है. जिस भी बॉडी में ये एंटर करता है उसकी मशीनरी को क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग काम कराता है, अपने रेप्लिकास बनाता है, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से अपना होल्ड कर लेता है उसकी बॉडी पे. ठीक है. नेक्स्ट, in living cell it replicates themselves. These replicate themselves. Fine. Next, DJ Avanosky said that there are certain microbes which act as causal organism of mosaic disease of tobacco. इसने क्या बताया था कि TME टोबैको मोजाइक वायरस का इसने डिस्कवरी किया था. इसने ये बताया था ये टोबैको को क्या करता है? डिजीज़ कोज करता है, और इस वायरस का नाम क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस. फाइन. नेक्स्ट, अब देखो वायरस के अंदर क्या है? प्रोटीन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में DNA RNA भी होता है. क्या होता है? DNA एंड RNA. डीएनए किसके केस में होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके केस में होगा? ये भी बात याद रखना. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसको इन्फेक्ट करता है? एनिमल्स को. प्लांट वायरस को कौन इन्फेक्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी या राइबोस, these are sugars. Fine. Next, some viruses
common cold, influenza, AIDS, smallpox, leaf rolling, curling. Fine. These are plant disease. Next, bacteria feeding virus are known as bacteriophage. Bacteriophage क्या होते हैं? जो भी वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसकी मशीनरी पर अपना होल्ड कर लेगा, फिर वो वायरस क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये पालता है बैक्टीरिया किसको? वायरस को। नेक्स्ट इज विरोइड्स। विरोइड्स, चियोडिनर। ही सेड दैट दिस विरोइड इज न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। उसने क्या कहा था कि क्या है? न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, बट इट इज स्मॉलर देन वायरस। It is smaller than virus and they don't have protein coating. They don't have protein coating. In case of virus, there is protein coat. But in case of viroids, there is no protein coat. They are free RNA without protein. ये free DNA नहीं है, free RNA without protein coat. For example, it causes potato spindle tuber disease. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसमें क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी पोटैटो की, साइज में चेंज आ जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइकेंस। दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। जो काई होती है ना पानी में, और फंगस, फफूंदी, उन दोनों के बीच में क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, उनके बीच में क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तू मुझे न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, तू मुझे न्यूट्रिशन दे देगा, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा। तो इसमें जो एल्गल पार्ट है, दिस इज नोन एज फाइकोबायोंट। एल्गल पार्ट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल पार्ट इज नोन एज माइकोबायोंट। अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइकोलॉजी? Study of algae. What do you mean by mycology? Study of fungi. Fine. They are good pollution indicator. It means they don't grow in polluted water. ये polluted water में कभी भी grow नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ ये water कैसा है? Polluted है। ठीक है। If you like my video, then please like, share it and subscribe my channel. Thank you.